What sort of job opportunities are out there? Top 3 skills मेरे को नौकरी दिलाई दी. What do you want to do after you graduate from this course? What sort of bachelor programs are accepted for this master's program? Alright guys, so I'm at the moment in Zwickau, sitting here with students who are currently studying masters in Hochschule Zwickau. क्या पढ़ रहे हो आप? Masters in? Masters Advanced Green Engineering and Sustainable Management. My name is Ayush. So how about we quickly start with your introduction? थोड़ा background बताओ so that students who are watching us can relate to your profile as well. I have done my bachelor's in electronics and communication from India, and then I have worked in BSNL, as you all know about BSNL. So then I tried to move Europe, and I think Germany was the best country to make a decision. So that's why I'm here to pursuing my master's in Advanced Green Engineering and Sustainable Management. What was your bachelor's score? 82-83%. Oh, nice. Hello everyone, my name is Chirag Joshi. I did my bachelor in Environment Science and Technology. I spent my 5 years in a pharmaceutical company. One is a Glenmark and second one is Heikel. So after 9 to 5 job करके मैं decide किया कि कुछ नया करते हैं. So Germany इसलिए सोचा कि पैसे कम इन्वेस्ट करने हैं as compared to the US, Canada, you have to spend 20 lakhs. Yeah. And the education purpose, Germany is the good. So I did some research and finalized the Hochschule Zwickau here because of the course which I chose, which I have to. Because my bachelor is in environment. So मुझे अपना फील्ड चेंज नहीं करना था क्योंकि मैंने 4 साल स्टडीज बैचलर्स में दिए और 5 साल मैंने अपनी जॉब के फील्ड में दिए. सो मुझे कोर्स चेंज नहीं करके मुझे इसमें ही परस्यू करना था. मेरा बैचलर्स का स्कोर था 7.43 CGPA. Okay. Hi guys, I'm Dhruv Gautami. I'm from Surat. I have done my bachelor's in mechanical engineering from Gujarat Technological University. So I recently passed in 2023. I applied directly for my master's, so I got this in first intake only. I am doing my master's in advanced green engineering and sustainable management as well. Bachelor score was 8.00 CGPA. और कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है? No. आपके पास 5 साल का है, आपके पास 3 साल का था. Hello everyone, my name is Mayank Patel and I am from Gujarat. I completed my bachelor's in 2021 and then worked for over 2 years and then decided to pursue master's in green engineering. So I selected this course because I feel like it would have a great future. It is on edge of booming, so I choose this course. I scored 8.17 in my bachelor's. 8.7. And I did my bachelor's in mechanical engineering. Mechanical. Yeah. You did mechanical, environmental and EC. Okay. क्या एक पॉइंट क्या बोलना चाहते हो आप? सो मैं कहना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट सेमेस्टर में आ रहे हैं जिनके बैचलर में भी 4 सेमेस्टर कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन एज पर द यूनिवर्सिटी आपके CTS कंप्लीट नहीं फुलफिल हो पा रहे, तो आपको अपना एक सेमेस्टर प्री सेमेस्टर देना पड़ेगा. और उसमें ऐसा है कि 7 सब्जेक्ट्स रहेंगे, आउट ऑफ 7 यू हैव टू पास 6. अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो आप नेक्स्ट मास्टर में एंटर नहीं कर पा रहे हो. अच्छा. आपको कंपलसरी 6 सब्जेक्ट्स पास करने ही करने. और ये जो प्री मास्टर्स वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं? मतलब ये आर दे रिलेटेड टू व्हाट आई एम गोइंग टू स्टडी या क्या है? हाँ, मोस्ट ऑफ देम बिकॉज द कोर रहेगा केमिस्ट्री. अच्छा. इन माई केस मेरी केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, तो मेरे लिए काफी प्रॉब्लम हुआ था. आउट ऑफ द 7 मैं केमिस्ट्री में फेल हो गया था. बट ये सब पता नहीं था या पता था? पता इन द सेंस जब आप मास्टर के लिए आओगे आपके एनरोलमेंट लेटर में ऐसा छोटे एक उसमें लिखा रहेगा दैट यू आर इन द PTI स्टडी कॉन्ट्रैक्ट में या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट? मैट्रिकुलेशन में. अच्छा. या और वो PTI. सो PTI का मतलब ये होता है, अभी अब जो स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये तुम सबको देना पड़ रहा है. आपने भी दिया था, समझे दिया. अभी तू तो आया ही हुआ है, तू भी आया हुआ है शायद से. तो अभी तुम लोग प्री मास्टर्स में हो, प्री सेमेस्टर्स में हो. ये 6 महीने का होगा. अच्छा. और जैसे इसने बताया कि 7 सब्जेक्ट होंगे, 6 में कंपलसरी पास होना है, नहीं तो ये एक्सटेंड होते रहेगा. थिंग इज इनके टाइम पे थोड़ा और आई वुड से हार्ड था क्योंकि 7 ही सब्जेक्ट दिए थे. हमारे सीन में कैसा हो कि हम लोग को ऑलरेडी वीज़ा लेट आया था. हम 3 जने साथ में, भले कोर्स सबसे पहले स्टार्ट हो गया और ऑलरेडी सारे कॉलेजेस में 8 अप्रैल और ऐसा काइंड ऑफ तब चालू हो रहा था सब कॉलेजेस में कोर्सेज. बट हमारा स्टार्ट हो गया था 11 मार्च से. सो हमारा हम लोग आए 28 को. फिर हम लोग के साथ क्या हुआ कि ऑलरेडी सब्जेक्ट्स कम है. प्री सेमेस्टर का एक तो शॉक लगा क्योंकि इतना आइडिया नहीं था, किसी ने बताया नहीं था और ऐसा, क्योंकि लगा कि आते ही मास्टर्स शुरू हो जाएगा. हाँ, जो 1.5 इयर्स का है वैसा. तो मैट्रिकुलेशन में ऐसा मेंशन नहीं है, 3 सेमेस्टर लिख के आता है कि आप मास्टर में 3 सेमेस्टर में खत्म कर दोगे. तो स्टूडेंट क्या प्लान करता है कि 1.5 साल खत्म कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके आता है.
जब यहाँ आते हो आपको पता चलता है कि आपका एक सेमेस्टर पूरा 6 महीना पूरा जाएगा प्री सेमेस्टर, मतलब 1.5 साल का कोर्स बेसिकली 2 साल 2 साल का कोर्स है। हाँ राइट। और अगर इन केस अगर आपने उर्लाब ले लिया, अगर एक सेमेस्टर ब्रेक ले लिया तो वो 2.5 साल भी बन सकता वो है। 2.5 साल भी हो सकता है, वापस ब्रेक 3 साल भी हो सकता है। राइट राइट। तो अभी ऐसा है। ओके ओके, सो यार प्लीज ये सब चेक करके आना। आई मीन नाउ दैट दे हैव गॉन थ्रू द एंटायर थिंग, बट जब ये सब हो रहा था इनिशियल डेज में, जब पता चला ऐसा शॉक, तो कभी ये नहीं लगा कि यार कहीं और यूनिवर्सिटी में चले जाता हूँ, ये क्या हो रहा है, मैं क्यों अपना 6 महीना वेस्ट करूँ अपना। मेरे केस में ऐसा था कि जब मैं आया तो मुझे आते नेक्स्ट मंथ जॉब लग गई। जॉब लग गई तो फिर सोचा कि अभी वापस जीरो से स्टार्ट करना, नए सिटी जाना रहा था, उसका बैंक अकाउंट ये सब वो सब करने में मैंने और मुझे था कि ये कोर्स भी अच्छा है, 6 महीने इन्वेस्ट कर देते, देखा जाएगा फिर क्या ही होगा। ओके, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए ऐड करना चाहता हूँ जो सीरियसली इस कोर्स को अप्लाई करना चाहते हैं। प्री सेमेस्टर का मेन मोटिव ये है कि ये जो कोर्स है वो 1.5 साल का है, तो इसमें 90 ECTS होते हैं, तो 90 ECTS को 120 कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक प्री सेमेस्टर रखा हुआ है जिसके आपको 30 क्रेडिट्स मिलते हैं। आजकल जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जैसे ध्रुव और मयंक की बात करें, तो इनको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे 7-8 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, तो आप एक साल में उनको क्लियर कर सकते हो। मेरे टाइम पे क्या था, हमें 7 सब्जेक्ट थे जिसमें से 6 क्लियर करने हैं विद इन 6 मंथ्स। और अगर ये चीज़ आज भी है, अगर आपका प्री सेमेस्टर कंप्लीट होता है तो आप मास्टर्स में एडमिशन आपको मिलेगी, अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं मिलेगी और ना ही आपका वीज़ा एक्सटेंड होएगा। दैट मीन्स आप यहाँ आ गए हो, आप पढ़ रहे हो, यहाँ आने के बाद भी वीजा कैंसिल हो सकता है। हाँ, अगर मैं प्री आपका मास्टर्स क्लियर नहीं किया तो। अगर आपका मास्टर्स का प्री सेमेस्टर क्लियर नहीं है तो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होएगा। हाँ अगर आपने प्री सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपकी जो डिग्री है वो आप अगर एक्सटेंड करना चाहते हो तो वो 3 साल के लिए हो सकती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू जर्मन रूल्स अगर 2 साल की डिग्री है उसको आप 4 साल में कर सकते हो। हमारी 1.5 साल की डिग्री है तो मैक्सिमम हम इसको 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर 3 साल के इन बिटवीन आप एबल नहीं होते उसको कंप्लीट करने के लिए तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। सो इन सच केसेस यू हैव टू चेंज योर यूनिवर्सिटी। बट आप लोग किसी और शहर में किसी और दोस्त के साथ ऐसा प्री मास्टर्स वाला केस हुआ था या सुना, ऐसा कुछ सुना? नहीं, तुमने पहली बार सुना? ऐसा तब होता है कि लाइक जो कोर्सेज 90 ECTS के होते हैं, 1.5 साल के कोर्सेज होते हैं, तो उनको कंप्लीट करने के लिए 120 बनाने के लिए वो प्री सेमेस्टर ऐड कर देते हैं जो सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू होते हैं मास्टर्स के ही। हाँ ठीक है, जैसे चिराग ने बोला कि वो डीप केमिस्ट्री के रिलेटेड होंगे, और उस प्री सेमेस्टर में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपने प्री सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया तो आपकी मास्टर्स जो है वो आपके लिए और भी ईजी हो जाएगी। लाइक मैंने जो मेहनत प्री सेमेस्टर में की है वो मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ, जो आगे के 2 सेमेस्टर मैंने क्लियर करे। तो उसके लिए था कि हाँ, प्री सेमेस्टर पढ़ा हुआ है वो तो ईजी बहुत था सब कुछ करना, तो अभी एज ए लाइक जैसे फ्लो ऑफ वाटर सब कुछ ऐसे जा रहा है तो डिग्री इजीली कंप्लीट हो जाती है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि न्यू है, केमिस्ट्री के वर्ड सुन के हम डर जाते हैं केमिस्ट्री होएगी, बट अगर हम करेंगे तो हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, इट्स नॉट अ बिग डील। Okay. And what sort of bachelor programs are accepted for this master's program? There are students in our class which are from chemical engineering, also from EC there are 2-3 people more. Civil. Yeah, and civil. Okay. It's a multidisciplinary course. Yeah, multidisciplinary. Okay. Once a student graduates from this master's program, what sort of job opportunities are out there for one to have? Well, students have lot of opportunities. They can apply in any company because every company demands people who are like related to sustainability. It doesn't matter it's IT company or any other company. Each and every company needs such people. So if I talk about Germany, there is the only barrier like we have to clear German exam as well. But if you want to apply somewhere else, like you don't have this barrier. For the job point of view, I will say it's a massive opportunity for everyone. Okay. What is your personal aspiration? क्या करना है इसके बाद? Next semester I will write my thesis and after that I will look for the job. And even right now I'm looking for the job. So I'm just struggling with my German. Actually, What job are you looking for? Just to be more precise. it doesn't matter. In every company you will, when you go to their careers, when you find a job, there is a specific section like sustainability. So sustainability is basically like we can save resources for our future generations. We are not saving such things for our future generation, so it is like we have to think about our future generation and use such resources accordingly. As per you, to get hired for such a job, what are the top 3 skills required? It depends upon person to person and their qualities. Like someone who like we have different subjects like circular economy, supply chain management, sustainability, like how we can contribute. So it depends upon a person to person. What do you want to do after you graduate from this course? मैंने जो एनवायरमेंट किया, मेरे 5 साल उन्हें पेंट के है, तो मेरा जो कोर्स था वो मैं वाटर में किया था। सो अभी मैं फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हूँ ऐसी कोई कंपनी जो एनर्जी रिलेटेड काम कर रही हो। से गो थ्रू द 2-3 कंपनी विच इज इन बर्लिन, जो नया स्टार्टअप्स कर रहे हैं, मुझे उनके साथ काम करना पसंद पड़ेगा। Right. Now that I look at your CV, let's say, so
व्हाट डू यू थिंक आर द टॉप 3 स्किल्स जो तुम्हें लगता है कि ये तो 3 चीज मेरे को नौकरी दिलाई देगी? फर्स्ट ऑफ ऑल सैप आपको आना चाहिए। अच्छा, आप सैप, आप ईआरपी पे काम करते ईआर हो? पे काम कर चुका हूँ मैं। ठीक है, आपका भी ऐसा कुछ है? ओके। तो सैप आना चाहिए। जैसे हम यहाँ नया एसक्यूएल पढ़ रहे, तो मेरे लिए नया है क्योंकि मैंने कभी वो किया नहीं। तो इफ आपको वो आता है तो पॉजिटिव थिंग है वो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू नो अबाउट द व्हाट आर नाउ न्यू थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, क्या नया चल रहा है, क्या हम कर सकते हैं, या कोई नया आइडिया है, तो वो आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। पॉजिटिविटी रखना चाहिए क्योंकि अभी जो भी लोग जर्मनी में आ रहे हैं, अभी इतना ईजी नहीं है कि जॉब मिल जाता है सब लोगों को। जैसे हम सुन रहे हैं कि जर्मन आना चाहिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। जर्मन आता है फिर भी लोगों को जॉब नहीं मिल पाता है। डजंट मैटर कि आप जर्मन सीख के आ रहे हो, इट्स अ प्लस पॉइंट या प्लस पॉइंट, बट सम सर्कमस्टांसेस इट्स लाइक दैट। इन माई केस मैं अभी जर्मन करके नहीं आया, तो मेरे लिए बहुत बड़ा बैरियर है। अभी मेरा जर्मन में इंडिया से लगा रहा हूँ, तो वो टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट दैट गुड हियर बिकॉज आपको जॉब करना है, खुद का स्टडीज़ करना है। इंडिया से स्टडीज़ कर रहे हो तो और प्रॉब्लम हो जाता है कि टाइम एडजस्टमेंट इतना है नहीं। तो इंडिया से अगर सीख के आ रहे हो, जो भी स्टूडेंट उनको बोलना चाहूँगी इंडिया से सीख के आओ, अगर हो सकता है तो नॉट फॉर द B1 B2 तक करके आओ, क्योंकि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जर्मन्स है, प्रोनाउंसिएशन अलग से, तो उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। राइट। तो तुम जैसे कि लाइक इन कंपेयर टू एटलीस्ट 4 ऑफ यू राइट नाउ, तुम्हारे पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इंडिया से, राइट? एक बॉल पार्क अगर आप दे पाओ कि व्हाट सॉर्ट ऑफ सैलरी एक्सपेक्टेशन यू मे हैव फ्रॉम इंडस्ट्री अभी जैसे मैंने कम्युनिकेशन कर रही है कुछ लोगों से, सो मिनिमम इज 60,000 यूरो 70,000 यूरो पर एनम विथ योर प्रोफाइल, विथ आवर प्रोफाइल। अभी जैसे कि ये जाएगा नौकरी लेने, ये तो फ्रेशर है, इनको कितना 40 to मिल सकता है? 40 to 50 इनको मिल जाएगा। ओके।